Hello, everybody. My name is Dr. Pratima Sadangi, Assistant Professor in the field of Political Science. So, I am working currently as Assistant Professor in Gangadhar Meher University in the School of Political Science, Sambalpur, Odisha. So, today we are going to discuss about the topic which is a very important autonomous body in our constitutional system of India, that is known as Election Commission. We discussed on lot of topics related to political parties and the voters behavior, the factors influencing voter behavior in the paper political process in India. Today we are going to discuss about election commission. What is election commission and what are the powers of election commission, what are the functions of election commission, and how the election commission is constituted or it is established or set up in the process or in the system of in the political system or in the democratic system of India. So, the election commission is the main body, or the first part we will discuss about the evolution of election commission, appointment of election commission, who is the appointing authority of election commission, and how the election commission is composed of, and who are the members of election commission, and how many election commissioners are there. So, to start with election commission, we know that each and every body, each and every office or organization, so which is vested with power in our democratic form of government in India, then definitely they are interested by the constitutional provision. So, as per the constitutional provision, Election Commission of India is established under the Article 324. So, आम जानी जदि आमर कन्स्टिट्यूशन अच्छी आ कन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अनुसार सबू जो आमर जो ऑटोनोमस बॉडी जो अच्छी बा कमिशन सब तैयारी होती बा विभिन्न बोर्ड तैयारी होती इन टू वर्क इन द पॉलिटिकल सिस्टम of our country, then definitely they are set up as per the constitutional provision. The constitutional provision अनुसार विभिन्न कमिशन्स विभिन्न बोर्ड तैयारी होता है, विभिन्न कमिटी तैयारी होता है और से कमिटीर विभिन्न प्रकार सेपरेट काम और ऑब्जेक्टिव मध्य थाए. तो एटी जमती आम आज इलेक्शन कमिशन उपर डिस्कशन करुचे जिते आम इलेक्शन उपर डिस्कशन कले बा पॉलिटिकल पार्टीर रोल उपर डिस्कशन कले बा आम भोटिंग बिहेवियर उपर डिस्कशन कले ताले डेफिनेटली आम डिस्कशन करने को दरकार जे पॉलिटिकल पार्टीर जो रिकग्निशन पार्ट आम पढ़िले बा आम स्टेट पॉलिटिकल पार्टीर जो रिकग्निशन पार्ट पढ़िले से इलेक्शन किए रिकग्निशन बॉडी आम जानी पढ़िले जे इलेक्शन कमिशन होची रिकग्नाइज करती टू ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और एज ए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी. किंतु आमे पुन जानिबा को दरकार जे इलेक्शन कमिशन आमे कहा को कहूचे और इलेक्शन कमिशन रो एस्टैब्लिशमेंट तार सेटअप केमती होची. So, when we are going to discuss about election commission, so the article 324 ये जो आमर constitutional provision अनुसार ये constitutional provision एटी कौन रही ना constitutional guarantees दौची जे article 324 जो रही से article 324 ही guarantee करुची to set up election commission. बोधे आमे लेमैन हिसाब रे जानी परिबा जे सी नारू election commission रा नारू the election commission कहले definitely that commission is related to election or election process or the electoral behavior. जदि आमे सेटा को आमे डिस्कशन करबा त ये जो कमिशन टी एस्टैब्लिशमेंट हेची इलेक्शन जो आमर इंडिया रे करबा पई बा ताको रेगुलेट करबा पई इलेक्शन कमिशन रा मेन रोल थाए. किंतु आमको जाना पड़ो एज अ सोशल साइंस स्टूडेंट और एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट वी नीड टू नो इन डिटेल what is the summary of the translation of article 324(1). So article 324 जोड़ा थिला ताकि टिके किछि मॉडिफिकेशन रही छी. सो आर्टिकल 324 रो इंटरप्रिटेशन रोची जोटा को आम बहुत ब्रीफली बुझी पारिबा जे इलेक्शन कमिशन कौन पे एस्टैब्लिशमेंट करा जायछि. सो द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड द कंट्रोल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल इलेक्शन. Superintendence means to supervise election or election process, that is superintendence. 1. Number 2 is direction. The election commission the commission has the directory power or power to direct
in the election process, that is direction. Then the other one is control. The commission has the power to exercise control over the election process, to regulate the election in our country. तो एठी रहला कोन सुपरविजन पावर भी रहला, डायरेक्शन पावर रहला, से डायरेक्ट भी करि परिबे से कमिशन, आ कंट्रोल मध्य करि परिबे फॉर व्हाट, फॉर ऑल द इलेक्शन. ऑल द इलेक्शन मीन्स माने भाबी तो ऑल इलेक्शन माने को इलेक्शन को किछि किछि स्पेसिफिक इलेक्शन से इंक्लूड कराई ना, सबू इलेक्शन को ही ए कमिशन रेगुलेट करता है. ऑल इलेक्शन दैट इंक्लूड्स पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर of each and every state, then election of president and election of vice president. तो आम जिते अन्य पेपर अच्छी जे आम इलेक्शन प्रोसेस कौन रही, केमती आमर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, केमती भाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस कौन रही, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशंस, प्रोसेस, किए पार्टिसिपेट करें, किए पार्टिसिपेट करें, सबू जिनस जो रही दैट इज रेगुलेटेड, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड बाय द कमिशन. ताले से जो कमिशन रोल रहा जब आर्टिकल 324 जो आमर कन्स्टिट्यूशन रही से ग्यारंटी करुच्ची आमर गोटे कन्स्टिट्यूशन इंडिया हवा दरकार बा जोटा कि से जो कमिशन पावर एक रहा दरकार जे टू सुपरवाइज, टू डायरेक्ट एंड टू कंट्रोल द प्रिपरेशन ऑफ द ऑल द इलेक्शन इन होल कंट्री इंक्लूडिंग पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट, the election of the president and the vice president. तेणु एठी जहाँ जहाँ प्रोसेस रुहे जो जो प्रोसीजर दे के इलेक्शन प्रोसेस गुड़ी का तैयारी होता है, और से जो इलेक्शन प्रोसेस रे जहाँ क्वालिफिकेशंस रही, डिस्क्वालिफिकेशंस रही, तांकर जो इलेक्टोरल कॉलेज रो रही बा इलेक्शन प्रोसेस कौन रही, स्पेसिफिक इलेक्शन ऑफिस जोटा कि इलेक्शन सिस्टम फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट तांकर प्रोसेस रे कौन रही, जो माने पार्टिसिपेट करें से इलेक्टोरल कॉलेज रे, all are discussed in the or that are exercised by this particular commission. ताले सेठी जल देखिबा जे एवरी स्टेट ताले एठी केवल आमे खाली पार्लियामेंट माने सेंटर से माने रेगुलेट करिबेनी, से माने सेंटर सांगरे ईच एंड एवरी जो रहइबो से मानकर समस्तिंगर से माने रेगुलेट करंती. सेंटर पार्लियामेंट रे जहाँ जहाँ इलेक्शन रहइबो सेटा को से माने रेगुलेट करिवे, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर जो इलेक्शन रहइबो ताकू मध्ये रेगुलेट करंती किए से ना ए कमिशन. So each and every state रो election को से regulate करंती. Then the election of president and the vice president. So held under this constitution. आमा constitution under भितरे जो democratic form रे हमें जानी चाहिए कोटी डायरेक्ट इलेक्शन अच्छी, कोटी इनडायरेक्ट इलेक्शन अच्छी, आउ जिते डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन अच्छी, आउ कहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन, कहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन, को पोजिशन पे डायरेक्ट इलेक्शन, को पोस्ट पे इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्लस पार्लियामेंट इलेक्शन कौन रही, केतबेले जनरल इलेक्शन होची, को हाउस पे डायरेक्ट इलेक्शन आउ को हाउस पे नुहे. तो सो ऑल दीज आर अंडर द सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन and to prepare to regulate the whole process by this commission. So our constitution is also saying that we need to have a constitution which shall act to supervise, to prepare, to control and to direct the whole process of election in the country as a whole, including each and every state legislature or the election at the state level. Then set रहला that so under the constitution that shall be vested in a commission. से जो commission रहला that is known as election commission. So it is known as election commission of India. So the commission, that means if you just summarize the whole summary of article 2324(1), that one commission who is vested with the supervisory power, directory power, then controlling power regarding the preparation of election all over the country, including parliament, state legislature, president office and the vice president. Then definitely the power shall be vested in this particular commission, and that commission is known as election commission. तो election commission जदि आमे गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था रे देखिबा तो election commission रो रोल रहिला जे सब ए जो जे कोनोसी इलेक्शन देश भितरे रहुची से माने ताको रेगुलेट करिवे, तांकर सुपरवाइज भी करिवे और डायरेक्ट भी करिवे.
ताले गोटे एते बड़ देश रे गोटे इलेक्शन कमिशन definitely we have also state election commission in each and every state, but as a whole what is the election commission role and who is the appointing authority, what is the tenure of election commission, we'll discuss all these things first to understand what is the role of election commission. ताले जना पड़थबो जे काहे की हैला कोन कोन नेसेसिटी थिला कॉन्स्टिट्यूशन काहे की गोटे इलेक्शन कमिशन हमर हबा दरकार बोली से माने गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 324 को सेट कले बा ताको इम्प्लीमेंट कले because in a democratic setup we need general election, direct election to select to elect the representative of the people by the people. कहीं जिते आम जानी गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था लोक मैंने निजर प्रतिनिधि मानक इलेक्ट करने दरकार से मैंने जिते पॉपुलेशन बहुत अधिका था सबू लोक जाकि इलेक्शन जिते आमर गवर्नेंस प्रोसेस रे बा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सिस्टम रे से भाग नहीं पारे तो से कौन हुए ना गणतांत्रिक व्यवस्था एमती करागला जे इलेक्शन गोटे प्रोसेस रु इलेक्शन रे से माने प्रति टेन्यूर पर से पॉलिटिकल पार्टी बा कौन सी मेंबर को इलेक्ट करेंगे जो माने लोक माने तो वोटर आम ये कौन रही ना एडल्ट फ्रांचाइज रही तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज जोटा कि आमर 18 इयर्स नाउ ना द वोटिंग एज इज 18 इयर्स जो मानकर 18 वर्ष बा 18 वर्ष रु अधिका से माने वोट प्रोसेस रे भाग नहीं पारिबे आ से मानकर जो वोट प्रोसेस रे भाग नेबे तो डेफिनेटली से जो लोक मैंने जाकि कौटी भी मन इच्छा तो जाकि वोट दे पारे कौ जगह वोट देवे सेटा भी लोक मानक जनवा दरकार तो कि को ऑर्गेनाइजेशन ए सब जिनस को रेगुलेट करिवो को ऑर्गेनाइजेशन ए सब जिनस को रेगुलेट करिकि तांको मॉनिटर करिवो को ऑर्गेनाइजेशन ए जो वोटिंग डेट कुछ नहीं कि वोटिंग पोल कोठी हबो वोटिंग सेंटर कोठी हबो ऑल दीज थिंग्स व्हिच ऑर्गेनाइजेशन विल रेगुलेट तले एठी हम जे कहबे जे पार्लियामेंट सब जिनस करिवो पार्लियामेंट करि परिबोनी काहेकि ना जेहेतु सेठी से पार्लियामेंट रे ही इलेक्शन भी इंक्लूडेड अछि आ सेथि पई गोटे सेपरेट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कहला जे गोटे सेपरेट बॉडी रहा दरकार आउ दैट बॉडी इज वेरी ऑटोनोमस इन नेचर से लेजिस्लेचर बा जुडिशियरी कौन सी इंटरफेरेंस रही न थाए एंड इट इज अ वेरी ऑटोनोमस बॉडी इन नेचर टू वर्क और टू एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड फंक्शन सो आम धीरे धीरे डिस्कशन करवा नेक्स्ट पार्ट रे जे फंक्शन आ पावर्स कौन अच्छी ताले आम जापर जे इलेक्शन कमिशन केमती रेगुलेट करे आउ से केमती इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कमिशन रोल कौन रही एंड हाउ दे आर रेगुलेटिंग हाउ सक्सेसफुल दे आर सिंस इंडिपेंडेंस इन आवर कंट्री ताले जिते आम आर्टिकल 324 रु तमाने बुझी पार्थुबो जे तांकर पावर रही टू प्रिपेयर ऑल द प्रोसेस and supervise, direct and control the process of election in our country. So that is the main theme of the election commission in our country, including all the state election and also the different election of the important office, that is president and vice president. ताली आउ गोटे रहा जो एडिशन कौन ना जिते आम तार कंपोजिशन पढ़ा तापर आम जापर जे सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो एग्रीड ऑन वन पर्टिकुलर डिसीजन दैट इज वेदर it was decided to have first one single election commissioner. जितेबले प्रथम इलेक्शन कमिशन होता से जड़े इलेक्शन कमिशन अपॉइंट करा बोली थिला बट जदि आम पॉपुलेशन साइज को देखा इन इंडिया देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रेगुलेट ऑल दीज वर्क रिलेटेड टू इलेक्शन कमिशन इलेक्शन प्रोसेस इन होल इंडिया इंक्लूडिंग ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर ईच एंड एवरी स्टेट लेजिस्लेचर देन डेफिनेटली one person for one office it is very impossible. So for that reason it was decided slowly due to due to necessary in the process of election process that to have more election commissioner in our system. So when it was like till 1989 one election commissioner was there and holding the position to regulate, to supervise with his minimum staff at the election commission office. Then slowly it was decided to have multi members or multi election commissioner in the election commission office. So the Supreme Court has also agreed that the interpretation of the with this particular interpretation of the constitution that as a commission is also exercising all these power regarding election process, then definitely the election commission must have a more election commissioner
other than single election commissioner. Because to regulate or to monitor the whole process in the election process, it was realized, and in that particular modification, Supreme Court has also agreed on that particular part. So the provision basically given the power to election commission and the power to do anything on everything which is related to regulate election process whole India. So in a layman point of view, the election commission is established by Government of India with the power to regulate and operate the whole election commission, whole election process in India, and they can take decision, they can also direct the election process to regulate and operate it very successfully. That is the main motto and objective of election commission in India. Then we are going to discuss about the composition. So composition and the constitution, there is a part in composition. Here that one election when it was established first since independence, then one election commissioner was appointed as the election commissioner, then other staffs are there just to assist him. And due to passage of time, due to requirement, due to complexity of that particular regulatory power of that election commission office, then it was realized to modify and to add multi-member election commissioner. So then it was realized to add one or two more election commissioner just to make the process smooth, and also to the power, the functions to be categorized among many, more than one person, just for the smooth functioning of election commission in India. Then until 1989, election commission was a single member body. One election commissioner was appointed till 1989 since independence in our Indian system. Then as I said, just before the general election of 1989, it was realized that in 1990, ଯେତେବେଳେ 1990 ରେ ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା 89 पर्यंत ओनली सिंगल मेंबर इलेक्शन कमिशनर सो गोटे इलेक्शन कमिशनर थिले जणे मेंबर आ सिंगल मेंबर इलेक्शन कमिशनर थिले से तांकर कोन थिला ना से इलेक्शन जणे इलेक्शन कमिशनर आ अदर असिस्टिंग स्टाफ आ से माने रेगुलेट करथले सुपरवाइज करथले होल इलेक्शन प्रोसेस इन एट द सेंटर एट द स्टेट लेवल कि जेतेबेले 1990 रो इलेक्शन जेते जस्ट इन दैट पर्टिकुलर इलेक्शन जस्ट बिफोर द इलेक्शन इन 1990 द इलेक्शन कमिशन ऑफिस रिवर्टेड टू इट्स सिंगल मेंबर स्टेटस मैंने पुणी कहले जे नाई आमे पुणी सिंगल मेंबर स्टेटस को रिवर्ट करिया पे चाहिए. एंड अगेन इन 1993 जेतेबेले हला से माने कोन करथले ना 1993 रे अगेन पुणी अदर टू मेंबर्स आर अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिशनर. प्रथमे थिला से माने सिंगल मेंबर बॉडी थिला टिल 1989 90 बिफोर इलेक्शन जना पड़े जे नहीं मैंने रिवर्ट करने को चाहूँगी ए सिंगल मेंबर स्टेटस. एंड इन 1993 3 मेंबर्स अगेन दे आर अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिशनर इन द इलेक्शन कमिशन ऑफिस इन इंडिया. ताले सेतेबेले कोन हला ना 2 एक्स्ट्रा इलेक्शन कमिशनर वेर अपॉइंटेड in the election commission office with the chief election commission. ताले यार जदि composition हमें जब देखिबा to discuss about the composition of election commission, here one chief election commissioner जने होचन chief election commissioner आउ दुई जन होचंती others are the election commissioner, only election commissioner. So one among three, one is known as the chief election commissioner and other two are also known as election commissioner. So in 1993 जेतेबेले हिला 2 election commissioner with the chief election commissioner were appointed, and till date the election commission office is a multi-member body. एबे पर्यंत मध्य 3 जन election commissioner रहिचंती बा अपॉइंटेड होचंती. तो जेतेबेले आमे कंपोजिशन होची जणे प्रथमे थिला सिंस इंडिपेंडेंस टिल 1989 जणे इलेक्शन कमिशनर रोथले तांकर बर्डन वर्कलोड आउ सुपरविजन कंट्रोल आउ इलेक्शन प्रोसेस रो होल वर्क ए सब जिंस को देखि कि
पुणी जना पड़ला जे 1993 से धीरे धीरे से पुणी इलेक्शन कमिशन को मल्टी मेंबर करदे आउ से कॉन्स्टिट्यूशन भी एटा मॉडिफिकेशन करथिले जे इट कैन बी द सिंगल पार्टी मेंबर और मल्टी पार्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज मध्य करथिले आउ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन अनुसार सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो अग्रीड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट जस्ट टू हैव वेदर सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर in the election commission just to regulate the whole work in the whole country तले एठी जदि रहिला आमे जदि डिस्कशन करबा जे चीफ इलेक्शन कमिशनर जो अपॉइंटमेंट हुअंती आ सितरे अदर 2 इलेक्शन कमिशनर मध्य रहिचंती आ जेतल चीफ इलेक्शन कमिशनर हेतले हमर फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर जे हेतले तांको नाम थिला सुकुमार सेन आउ से जो तांकर फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर भावे काम करथिले सी ऑल इन ऑल थिले सी इलेक्शन कमिशन ऑफिस को रेगुलेट करिया पे विथ हिज लिमिटेड स्टाफ मेंबर मध्य बहुत लिमिटेड आउ आजिका डेट रे 3 जण चीफ इलेक्शन कमिशनर अछंती आउ 3 जनक मध्यरु जणे होचंती चीफ इलेक्शन कमिशनर आउ जे जणे चीफ इलेक्शन कमिशनर होचंती तांका नाम होची सुनील अरोरा एंड अदर जो इलेक्शन कमिशन जो 2 जण अछंती जणे होचंती अशोक कुमार लभेशा एंड सुशील Chandra, they are the other election commissioner. Those are holding the position as election commissioner nowadays in India. So the first आमे जेतले election commission देखले जणे थिले 1993 पररो पुनी मल्टी मेंबर एटा हे जाईची ताले आमे गुटे क्वेश्चन मन को आसुतबो जे चीफ इलेक्शन कमिशनर आउ जो अदर इलेक्शन कमिशनर रोचंती 3 जण रहले जणे रहले चीफ इलेक्शन कमिशनर आउ जो माने रहले आउ 2 जण जो रहले से माने इलेक्शन कमिशनर रहले ताले सेमानन कोन पावर अधिका कम बेसी रही ना चीफ इलेक्शन कमिशनर जी रहिले सी मोर पावरफुल दैन अदर इलेक्शन कमिशनर नो ऑल आर एक्सरसाइजिंग इक्वल पावर एज इलेक्शन कमिशनर होल्डिंग द पोजिशन जमती मु कहली जितेबले रिक्वायरमेंट रही से मैंने सेम लेवल सेम पोजिशन ने अपॉइंटमेंट रही डेफिनेटली ऑल दीज 3 इलेक्शन कमिश्नर दे आर एक्सरसाइजिंग इक्वल पावर इवन इफ द सैलरी द अदर रेम्युनरेशंस अदर बेनिफिट्स आर also equal. So they are holding the position of chief election commissioner. Only one name is the senior most one is appointed as or designated as chief election commissioner. तो बेले बेले जमती चीफ इलेक्शन कमिशनर तांकर वर्सेस अदर इलेक्शन कमिशनर मध्य किछि ओपिनियन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हे पारे एंड एटा भी डिबेट हे जाई पारे किछि कंफ्यूजन सृष्टि पारे हु इज मोर पावरफुल नो वन इज मोर पावरफुल सो नो वन इज एक्सरसाइजिंग अदर एक्स्ट्रा पावर ऑल दीज 3 कमिशनर इलेक्शन कमिशनर आर एक्सरसाइजिंग इक्वल पावर से माने जेकोसी मैटर जेकोसी इलेक्शन इश्यूज जेकोसी इलेक्शन स्ट्रैटेजी को लेकिन 3 जनकर ओपिनियन सेम भाव में निया जाय थाए एंड दे डिसाइड ऑन ए पर्टिकुलर मैटर and they exercise equal power to decide or to take decision or to take part in the decision making process of election. सो से किसी द्विमत हबार ना कि चीफ इलेक्शन कमिशनर होचंदी अधिका पावर तांकर अछि बा अदर इलेक्शन कमिशनर मानकर कम पावर अछि समस्ते समान पावर पाती आउ बेसिकली आज ए सुप्रीम कोर्ट जज all these election commissioner they are also enjoying the salary structure other benefits and emoluments like a judge who is enjoying in the Supreme Court. So Supreme Court judge का status रे जहाँ जहाँ रही सैलरी हो बेनिफिट्स हो बा अदर जो किसी एमुलमेंट्स हो सबू जिनस को सेम आकार रे इलेक्शन कमिशनर जो 3 जन जाको सेटा दिया जाय थाए हमर इंडियन स्ट्रक्चर रे बा इंडियन सिस्टम रे आ रिगार्डिंग ताले एठी जदि हमें कंपोजिशन पढ़ले ताले एमान को अपॉइंटमेंट के करंती क्वेश्चन आसीबो हमर पॉलिटिकल प्रोसेस बा सिस्टम रे जत्ते बेले जे कोनोसी ऑफिस जे कोनोसी पोजीशन को जे होल्ड करंती वेदर थ्रू इलेक्शन वेदर थ्रू अपॉइंटमेंट वेदर थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन वेदर थ्रू अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट देन हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर हियर द प्रेसिडेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी आम जाने जो प्रेसिडेंट अदर पेपर रे डिस्कशन होता प्रेसिडेंट पावर्स फंक्शंस then definitely the president is exercising the power of appointing or appointment to appoint these autonomous body organizations or different commissions or the boards and the member the commissioner in that particular commission.
ताले here in the election commission office the chief election commissioner and the other two election commissioner they are appointed by the president of India. तो प्रेसिडेंट ही तांको अपॉइंटमेंट करथांती ताले जेतले जदि से माने अपॉइंटमेंट करथांती प्रेसिडेंट तांकर अपॉइंटमेंट करथांती कि बाय द प्रेसिडेंट ऑफ India. So when president is the appointing authority, then definitely as like as other post in our constitution or in parliament, so definitely there are removal kahin ki na jodi ame dekhiba eti tikki just ame discussion kariba तांकर tenure kon रही what is the tenure term कौन अच्छी ऑफिस जदि से अपॉइंटमेंट हेले कौन से पूरा 5 वर्ष 10 वर्ष कि 15 वर्ष अपॉइंटमेंट हो नो द टेन्योर द टर्म ऑफ one election commissioner is 6 years or 60 till the age of 65 years से मानन को 6 वर्ष से माने कंटिन्यू करि परिबे से इलेक्शन कमिशनर हिसाब रे आ जेतेबेले अपॉइंटमेंट डेट रू तांकर काउंट हुए जेबे 6 वर्ष पुरिबो सेटा से माने कंटिन्यू करि परिबे किंबा टिल द एज ऑफ 65 इयर्स जदि से मानकर 6 वर्ष कंप्लीट हेई गला 65 इयर्स हेइनी ताले से माने 6 वर्ष कंप्लीट जो दिन हम से ऑफिस को वैकेट करेंगे किंबा 6 वर्ष कंप्लीट हेइनी 1 ईयर बिफोर कि 6 मंथ्स बिफोर तक 65 इयर्स एज हो गला ताले भी से बेठू से ऑफिस को वैकेट करेंगे सो द टेन्योर इज सिंपली 6 इयर्स और टिल द एज ऑफ 65 इयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर जोटा फर्स्ट आसीबो 6 इयर्स आसू कंप्लीट हो बा 65 इयर्स हो तो जोटा फर्स्ट आसीबो सेटा ही तांकर टेन्योर so in general term it is 6 years and basically once they are appointed to that particular office as election commissioner then definitely they enjoy the term of 6 years or till the age of 65 years यदि टर्म रहा 6 इयर्स जमती आमे अन्य मानक अन्य जो पोजिशंस रही इन द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर जितेबाला प्रेसिडेंट हुंतु बा प्राइम मिनिस्टर हुंतु बा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुंतु बा स्टेट रो चीफ मिनिस्टर्स बा गवर्नर हुंतु समस्त अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो आम डिस्कशन करें से पोजिशन रिमूवाल रही रिमूवाल प्रोसेस इज ऑल्सो देयर सो सेमती जो मैंने इलेक्शन कमिशनर हिसाब से अपॉइंटमेंट होती बाय द प्रेसिडेंट दैट इज ऑल्सो वेदर दैट इज ए क्वेश्चन वेदर बिफोर द टर्म बिफोर द टेन्योर ऑफ 6 years whether the election commissioner or the chief election commissioner can be removed or not हे पारिबे रिमूवाल हे पारिबो त रिमूवाल रो प्रोसेस मध्य रही जेतेबेले से माने केमती रिमूवाल हे पारिबे जेमती आमे कहितले जेमती सुप्रीम कोर्ट रो जज हिसाब रे जेतेबेले से माने सबु प्रकार बेनिफिट्स आ सैलरी पाई थांती डेफिनेटली द रिमूवाल प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया इज आल्सो सेम because when we are discussing about one autonomous body and that autonomous body is also holding most important position regarding election to control election process in India and when they are appointed by the most important office that is office of the president or by the president of India there is a removal process. So basically with the 2/3 majority of both the house is when they are present and voting 2/3 majority of both the house when they present and voting or that is another one is simple majority of the total membership of the house. These are the criteria and that's special majority which simple majority and 2/3 majority that are the basic process for the removal of the election commissioner and other cases like death or resignation or other are also obvious when somebody wants to leave the position or somebody wants to just leave that a particular office then that is the personal decision but whether there is a process to remove the removal को ग्राउंड रे हेबे जदी सेमान को जो अपॉइंटमेंट करा जाय थाए डेफिनेटली सेमान को इलेक्शन प्रोसेस रे सुपरविजन कंट्रोल और रेगुलेटरी पावर बा फंक्शन दिया है कि अपॉइंटमेंट कराई थाए तांकर प्रथम ड्यूटी रहिला हाउ टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन होल कंट्री जदि से फ्री और फेयर इलेक्शन करिले बा कंडक्ट सक्सेसफुली करि पारले ताहाले कोनोसी प्रकार रिमूवल बा इम्पिचमेंट प्रोसेस हबा दरकार पड़ेनी बा जरूरी न थाए सो व्हेन दे आर सक्सेसफुली रनिंग एंड ऑपरेटिंग द इलेक्शन प्रोसेस विथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन
process in whole country, including each and every state, then there is no requirement of impeachment or removal. But if there is something which is required, or if there will be any situation happen regarding that particular position, then definitely there is a process of removal with the 2/3 majority and simple majority of both, not by single house majority but both the house majority. And who can remove? President can remove. As president is the appointing authority, definitely president can also remove the election commissioner. So we discussed about the constitutional provision, we discussed about the composition of election commission office, how many election commissioner are there, and what is the position of chief election commission, and who are other election commissioner in election commission office. Then other than that, what is the tenure and term of election commissioner including the chief election commissioner. Then whether there is a difference of power between chief election commissioner and the election commissioner, other election commissioner. Then we discussed who is the appointing authority and whether the election commissioner can be removed before their term, before their tenure of 6 years. So when we are discussing all these process, definitely when they are holding the position in one autonomous body, and basically the retired IAS officers or retired officers with that type of capability, they are invited, they are just to hold the position, they are appointed to hold that particular position by the president. But before that, what happened, there is a discussion to appoint or to select one person as election commissioner in the election commission office. से मैंने अपॉइंटमेंट कला पूर्व कौन हुए ना से मैंने जन को जो सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस संगे कंसल्ट करथांती, से मैंने कंसल्ट करथांती जो मैंने टू डिस्कस अबाउट द एक्सपर्टीज आज इलेक्शन कमिशनर, जो इलेक्शन कमिशनर हिसाब से एक्सपर्टीज डिस्कशन करती, देन डेफिनेटली से मैंने जानिबा को पाती टू बाय एनालाइजिंग द पर्सन्स record, track record, capability, performance and expertise to hold the position of election commissioner. Thank you.